Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to start a new unit of your book, unit number 14, Statistics. This is not new to you. You may have read it in class 9th also. तो क्लास 9th में आपने जो पढ़ा होगा, जैसे आपने डेटाज के बारे में पढ़ा होगा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटाज, आपने ग्राफ्स के बारे में, हाउ टू रिप्रेजेंट डेटाज ग्राफिकली, लाइक बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में सीखा होगा। और फिर आपने ये भी सीखा होगा कि हाउ टू फाइंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लाइक मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो कैसे निकाले जाते हैं। तो जहां पर आपने छोड़ा था 9th में, वहीं से 10th में स्टार्ट है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है हम यहाँ पर शुरू करेंगे 10th में। यहाँ पर भी हमारा टॉपिक मीन, मीडियन एंड मोड है, साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और द ग्राफ यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पढ़ना है, तो उसी को आगे बढ़ाना है। तो मैं एक एक करके ये टॉपिक्स लूंगा और फिर आपको जो है थोड़ा बहुत, अगर मैं इसमें रिपीट भी करूंगा पीछे जो आपने किया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमारा टॉपिक होगा मीन यहाँ पर लेकिन उससे पहले कि हम मीन के बारे में जाने, हम ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा के बारे में जानते हैं। देखो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, in my class of 10th class I had 30 students, and in one of the examinations, class test में ले रहा हूँ, और उसमें मैं out of 20 मार्क्स हैं, और 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस तरह से हैं। से फॉर एग्जाम्पल 16, 18, okay, 12, 10, say 5, 6, 14, 18, 20 also, 16, 12, 10, 4, 15, 18, 10, 9, 14, 16, 12, 14, 12, 5, 8, 12, 18, 20, say 16, 14, and 10. तो मान लो this is a data showing marks obtained by 30 students of class 10th in a class test of mathematics, and ये 30 टोटल होंगे, 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20 24 28 29 30। ओके, तो अब ये जो डेटा है, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। ओके, अब यहां पर अगर आपने सीखा होगा 9th में, मीन ऑफ एनी डेटा इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम एक सिंपल डेटा की बात करें और हमारे पास इंडिविजुअल इतना ही हो डेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल एड अप दीज terms or observations and divide the total number of observations, that is 30. So whatever we get the average or mean of the data. Okay, ये तो हो गया एक जो आपने किया है 9th में। लेकिन आपने 9th में एक और बात भी, शायद एक क्वेश्चन था उसका, वो भी आपने किया है, जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर इस डेटा को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करोगे 16 की, ये कितनी बार है आप चेक करो, जैसे 1 2 3 4। So the frequency of 16 is 4. 18 1 2 3
18 is also with frequency 4. 12. 1, 2, 3, 4, 5. So 12 is 5 times 10. 1, 2, 3, 4. 10 is 4 times. Then you have 5. 1, 2. 5 is 2 times 6. 1. 6 is only 1 time. 14. 1, 2, 3, 4. 14 is 4 times. Then we have 20. 1, 22. So 20 is 2 times. We have 4. 1, only once. 15. 1. We have 9. 1. We have 8. 1. So 4 plus 4, 8 plus 5, 13 plus 4, 17, 20, 24, 26, and 4, 30. So we can compress this data like this. Okay, while this is the marks obtained, and this is the number of students. That is, 4 students have obtained 6 marks, 16 marks each. 4, 18, 5, 12, and so on. Okay. Now, this is called a frequency. This is called a frequency. Fi, denoted by Fi. This frequency, you will find out that this will add up to 30 because we have total number of students 30. So we can write this as summation Fi is equal to 30. This is called summation or sigma. Fi is equal to 30. This means total number of students is 30. And what we have to do, now this marks, this is denoted by xi. Okay. And what we have to do, we have to make another call. हमें एक और कॉलम बनाना होगा that will show as Fi xi. Fi xi. That is product of Fi and xi. So that will be like this. 16 fours are 64. 18 fours are 72. 12 fives are 60. 10 fours are 40. 5 twos are 10. 6 1 6. 14 fours are 56. Okay. And 22s are 40. 4 ones are 4. 15 ones are 15. 9 ones are 9. 8 ones are 8. So we will get another column that will be Fi xi, that is product of Fi and xi. And at last you will find summation Fi xi, that is you will add up these terms like this. 4 plus 2 6, 12, 16, 21, 30, 38, 3, 9, 16, 22, 26, 27, 32, 36, 37, 378 you will get. So summation Fi xi is 378 and summation Fi is 30. So what we will get? We will get the mean, that is x bar. We denote mean by x bar. You have learned already. Is equal to summation Fi xi, where I is equal to 1 to n, divided by summation Fi, where I is equal to 1 to n. This I is equal to 1 to n means 1. We have n number of terms. So it will be from 1 to n.
Okay, where n means number of terms. So summation fi xi divided by summation fi, and summation fi xi here is 378 divided by summation fi, that is 30, and when you divide this by 30, you will get the mean of the marks obtained by the 30 students. So this method you have learned in class 9th also. There was only one question, I think, and this method you have learned, but here we are going to again repeat this method. If you have a data like this, you can form a table like this and then find the mean. Okay, अगर हम इसी को अब आगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये मैंने सिर्फ आपका रिपीट किया है 9th यहाँ तक, कि 9th में आपने जो पढ़ा था वो आपका रिपीट हो गया। अब आपको जो आगे पढ़ना है वो आप समझ जाओगे इससे। तो एक्चुअली हमें क्या करना होता है, अब ये डेटा आपने देख लिया, ओके, इसको आप ऐसे ही रिमेंबर करो। आप देखो हमें करना क्या है आगे। वी विल फॉर्म अ टेबल फर्स्ट लाइक दिस। अब इसको हम अच्छी तरीके से बनाएंगे, लेकिन इसमें हम एक कॉलम पहले ऐड करेंगे, दैट विल शो द क्लास इंटरवल। ये इसलिए है, देखो अगर आपका डेटा जो है लिमिटेड है, दैट मीन्स ज्यादा बड़ा नहीं है, देन यू कैन यूज दिस मेथड और प्रीवियस मेथड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये भी हम वही कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन थोड़ा बहुत इसको कंपैक्ट करके। तो अगर आपका डेटा जैसा कि डे टू डे लाइफ में एक्चुअली होता है, ज्यादा बड़ा होता है, अक्सर डेटा जो है ज्यादा बड़े होते हैं, तो उस लिहाज से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जब टेबल बनाओगे, यू विल हैव टू फाइंड आउट द क्लास इंटरवल फर्स्ट। क्लास इंटरवल एक कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम जो है आपका फ्रीक्वेंसी होगा fi, ओके, देन यू विल फाइंड xi। ठीक है, अब पहला कॉलम आपका xi नहीं होगा, आपका तीसरा कॉलम xi होगा। अभी क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है, ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे आपके मार्क्स शुरू होते हैं, सबसे छोटा जो आपका वैल्यू है दैट्स 4, सबसे कम मार्क्स कितने हैं 4। तो आप ग्रुप करोगे, आप चाहे 4 से स्टार्ट करो या उससे पहले 0 से स्टार्ट करो, तो आप ग्रुपिंग करो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप बनाता हूं 0 to 5, ओके, 0 to 5 की गैप रख के मैं ग्रुप बनाता हूं। दूसरा होगा 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, 20 to 25। अब ये मैंने क्यों रखा है 20 to 25, ये आपको मैं बताता हूं। दिस क्लास इंटरवल हैज 2 वैल्यूज, दैट इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। दिस कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस कॉल्ड अपर लिमिट। आपको ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी में आपको याद रखना है कि लोअर लिमिट तो इंक्लूड होता है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है। दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 तक तो इसमें आएगा, लेकिन 5 इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा, वो इसका लोअर लिमिट है। इसीलिए क्योंकि मुझे पता था 20 हमारे पास वैल्यूज हैं, 20 के वैल्यू, तो इसीलिए 20 इसमें नहीं आएगा, 20 इसमें आएगा, ये इसीलिए मुझे 20 to 25 भी ग्रुप बनाना पड़ा। ओके, क्लियर है? सो दिस इज आवर क्लास इंटरवल एंड दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ओके, अब जब मैं इसको जैसे 0 to 5 मुझे क्या देखना है, 0, 1, 2, 3, 4 जो है वो कितने हैं। अब वो हमें पता है कि सबसे छोटा वैल्यू हमारा 4 ही है, तो 4 वो एक ही है, तो इसमें एक ही आएगा, फ्रीक्वेंसी 1 होगी इसकी। ठीक है, फिर मुझे देखना है 5 to 10, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब 5, 6, 7, 8, 9, 5 कितने हैं 2, 6 1 है, 3 हो गए, 7 कोई नहीं है, 8 जो है 1 है, 4 हो गया, 9 जो है 1 है, 5 हो गया, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 5। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10 इज 5। उसके बाद आप 10 to 15 मीन्स 10, 11, 12, 13, 14। तो 10 जो है 4 है, 11 जो है कोई नहीं है, 12 5 है, 4 plus 5 is 9, 13 कोई नहीं है, 14 4 हो गया, 9 plus 4 is 13। और 14 तक ही हमें देखना है, 10, 11, 12, हाँ 10 हमने देखा है, 4, 11 नहीं है, 5 12 है, 9 हो गया, 13 नहीं है, 14 जो है 4 है, 9 plus 3 4 13 हो गया।
सो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 13. 15 to 20, 15, 16, 17, 18, 19. ओके 15 1 है, 16 जो है 4 है, 17 नहीं है कोई, 18 जो है 4 है, 19 नहीं है कोई, तो 4 plus 4 8 plus 1 9. So you will have to write 9 here. उसके बाद 20 to 25 में सिर्फ आपको एक 20 देखना होगा. 20 जो है 2 बार है, so you will write 2 here. अब आप चेक कर सकते हो, 9 plus 1 10, 15, 13 हुआ 20, 28 plus 2 30 हो गया. ये तो 20 आएगा, 30 आएगा है. So you have summation fi is equal to 30, जो कि आपको पहले से पता है. अब आपको इसकी जरूरत नहीं है. अब देखो आप आगे हमें क्या करना है. ये आप याद रखो, हम मेथड सीख रहे हैं टू फाइंड द मीन व्हेन यू हैव अ लार्ज डेटा, a bigger data, and when you have a grouped data. ग्रुपेड डेटा में जहां पर क्लास इंटरवल यूज होता है, इसमें मीन कैसे निकाला जाता है हम वो सीख रहे हैं. देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड हमें सीखने हैं और वही हम सीख रहे हैं. आप अच्छी तरह देखो, पहला मेथड हम क्या सीख रहे हैं. तो अब आपको xi निकालना है, क्योंकि xi एक्चुअली क्या होता था. xi होता था पर्टिकुलर, जो जैसे मार्क्स होते हैं 16 या 15, तो वो xi होता था. लेकिन यहां पर मान लो हमें, हमारे पास सिर्फ ग्रुप्स दिए गए हैं, क्लास इंटरवल दिया गया है, हमारे पास वो नहीं है. ठीक है ना, इंडिविजुअल मार्क्स नहीं है कि इंडिविजुअली किसने कितने मार्क्स लिए हैं. तो सिर्फ हमारे पास ये क्लास इंटरवल है 0 to 5. 1 था, हमें नहीं पता है कि ये 1 3 था या 4 था या 2 था. इस तरीके से हमें हमारे पास डेटा है. तो इस सूरत में क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, xi कैसे निकालते हैं. xi इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास मार्क हियर. क्लास मार्क एंड इसको कैसे निकाला जाता है. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है, डिवाइड बाई 2. तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 आ जाएगा. समझ गया. सो इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, क्लास मार्क xi. ओके 5 प्लस 10 15 डिवाइड बाई 2 होता है 7.5. 10 प्लस 15 होता है 25 divided by 2, 12.5. 15 plus 20, 35 divided by 2, 17.5. And 20 plus 25, that is 45 divided by 2 is 22.5. ये जो हमारा कॉलम है, ये है क्लास मार्क xi. ओके, अब हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, fi xi, that is product of fi and xi. You will multiply 2.5 into 1, that is 2.5. 7.5 into 5, 5 are 25, 5 are 35 plus 2, 37, 37.5, 13 5 are 65, 32 are 6, 26 plus 6, 32, 13 1 are 13 plus 3, 16 हो गया, 162.6, 9 5 are 45, 63 plus 4, 67, and another 9 plus 6 is 15, 157.5. Then you have 2 into 20, 2.5, that is 45. So this is your column fi xi. अब इसका भी सम निकालोगे, summation fi xi, you will get so 21. So 405.1 आपके पास समेशन fi xi हो गया. और जब आप यहां पर अब मीन निकालोगे x बार, दैट विल बी इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi, जो आपकी फॉर्मूला है मीन की. तो आप 405.1 डिवाइड बाय 30 निकालोगे, तो जो भी आपका यहां पर निकलेगा वो मीन होगा. दिस मेथड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड. ये जो मेथड है इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड. सो हाउ टू फाइंड द मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड. आपके पास ग्रुपेड डेटा होगा जिसमें क्लास इंटरवल होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी.
और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, दैट इज एक्स आई, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये जो कॉलम बनेगा, फिर आपको एफ आई एक्स आई निकालना होगा, जिसमें आप प्रोडक्ट निकालोगे एक्स आई और एफ आई का, इस कॉलम में लिखोगे, इसका सम लिखोगे, इसका सम तो होगा आपके पास। तो फिर जो मीन होगा दैट विल बी समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो ये जो यहाँ पर वैल्यू आएगा दैट विल बी मीन ऑफ द डेट। अब आप ये सोचोगे यहाँ पर आपका जो मीन है थोड़ा अलग आएगा पहले वाले मेथड से, क्योंकि डेटा वही है। अगर आप देखोगे जो मेरे पास डेटा था इससे पहले जिसमें हमने मीन निकाला था, वो और ये सेम डेटा है, लेकिन मीन में फर्क होगा, वो एग्जैक्ट होगा, याद रखना। वो जो हमने निकाला था दैट विल बी एग्जैक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अप्रोक्सीमेट होगा, इसमें थोड़ा बहुत डिविएशन होगा और ये अप्रोक्सीमेट में आएगा, क्योंकि इन बल्क जब होता है आपके पास होता है डेटा, बहुत ज्यादा डेटा होता है। ये तो मैंने एग्जांपल दी, हमारे डेटा बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो सकते हैं, तो उस सूरत में आपका जो मीन है थोड़ा बहुत डिविएट होता है, अप्रोक्सीमेशन में होता है, एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि हमें क्लास मार्क निकालना होता है। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि जैसे यहाँ पर मार्क्स हैं, हमें नहीं पता कि ये 0 to 5 जो है एक मार्क्स, एक जो है फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसीलिए क्लास मार्क की वजह से ये अप्रोक्सीमेशन में आ जाता है। हालांकि ज्यादा डिवेट नहीं होता है, थोड़ा बहुत अपने एक्यूरेट वैल्यू से डिवेट होता है, लेकिन ये तरीका जो है आपको सीखना होगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। ओके, अभी हमारे पास 2 और मेथड्स हैं जो हमें सीखने हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हमें क्या करना है, क्योंकि हम इसी के साथ ये कंप्लीट करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कॉलम एक और बनाते, पहले तो ये कॉलम हमें नहीं बनाना पड़ेगा, हम एक और कॉलम बनाते हैं यहाँ पर, दैट इज हम निकालते हैं एज्यूम्ड मीन। उसमें ये इसलिए होता है इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस। अगर आपके पास बड़े नंबर्स हैं और आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, आप और इजी करना चाहते हो कैलकुलेशन को, तो आपको ये और मेथड सीखने होते हैं। तो ये तो आपने देख लिया। अब हमारे पास जो है, मान लो यही डेटा है, फिलहाल मैं इसी डेटा पे आपको एग्जांपल यही के तौर पे यही ले रहा हूं। तो हम क्या करते हैं उसमें, हम ये कॉलम तो छोड़ दो भैया, हम यहाँ पर एक जो कॉलम बनाते हैं अगला, जो हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, ठीक है ना। एज्यूम्ड मीन कहते हैं कि हम इसमें से, ये जो क्लास मार्क है, इसमें कोई एक वैल्यू लेते हैं हम, जो कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक वैल्यू से। ओके, आप कोई भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी ले सकते हो, बट यूजुअली हम जो बीच में होगा वही लेते हैं, जो मिडल में होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये तो सारे वैल्यूज है, लेकिन मिडल में 12.5 होगा। यहाँ कभी कभी 2 होंगे मिडल में, तो आपको एक कोई भी चुनना है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ले लो, आपके रिजल्ट आपका सेम ही आएगा लास्ट में, लेकिन जिससे आपको इजी हो जाए वही। फॉर एग्जांपल मैं 12.5 लेता हूं एज्यूम्ड मीन, इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन, और यहां पर जो कॉलम है दैट इज कॉल्ड एज डी आई, दैट इज डिफरेंस एक्चुअली, या डिविएशन हम कहेंगे, डिफरेंस और डिविएशन। व्हाट इज दिस डी आई? इट इज एक्चुअली इट इज a माइनस एक्स आई, a माइनस एक्स आई, यानी कि सॉरी एक्स आई माइनस ए, इट इज एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो जो आपका एक्स आई है उससे माइनस हमें ये करना है एज्यूम्ड मीन, तो जो नया कॉलम बनेगा वो उसी का बनेगा फिर। अब यहाँ पर जो है 2.5 माइनस 12.5 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। डी वाई जो है दैट इज एज डिफरेंस, दैट इज एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज ए? इज एज्यूम्ड मीन, जो आपने इसमें से एक वैल्यू चुना है, जो कि हम यूजुअली सेंटर में लेते हैं, जैसे मैंने 12.5 लिया यहाँ पर, यही हमें हर एक से सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो एक्स आई है हर एक एक्स आई से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 2.5 माइनस 12.5 माइनस 10 आता है, ठीक है। सिमिलरली 7.5 माइनस 12.5 माइनस 5 आएगा, 12.5 माइनस 12.5 0 आ जाएगा, 17.5 माइनस 12.5 5 आ जाएगा, 22.5 माइनस 12.5 माइनस 10 आ जाएगा, सॉरी प्लस 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम होगा, अब आप देख सकते हो ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड है, इससे आप समझ रहे हो, ये इससे सिंप्लीफाइड है, इसीलिए ये कॉलम हम बना रहे हैं, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डी आई एंड एफ आई। हम एक्स आई एफ आई लिखते थे, लेकिन अब इसकी जगह ये कॉलम है हमें यूज करना, तो दैट मीन अब जो प्रोडक्ट होगा दैट इज एफ आई डी आई।
अब FIDI मीन्स 10 ones are 10 minus 10, 5 5s are 25 minus 25, 13 zeros are 0, 9 5s are 45, 2 10s are 20. Okay, और यहाँ पर आप इसका सम निकालोगे समेशन FIDI. So this will be like 25 plus 10 35 होता है, minus 35 plus 45 10 होता है, 10 plus 20 30 होता है. देखो कितना easy आपको हो जाएगा. So you have summation FIDI 30. और अगर आपको मीन ऑफ डिविएशंस निकालना हो, मीन ऑफ डिविएशंस दैट इज DI बार, दैट विल बी इक्वल टू, या D बार आप कह सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू समेशन FIDI डिवाइड बाय समेशन FI. ओके, दिस डिवाइड बाय दिस. लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मीन दैट इज X बार. इसी में से हम निकालेंगे लाइक यहाँ पर आपको ये आपको एक्चुअली करना नहीं है, सिर्फ सीखना है. यहाँ पर आपको डायरेक्ट फिर यूज करनी पड़ेगी फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं कि हाउ टू ऑब्टेन दैट फॉर्मूला फ्रॉम दिस. तो मान लो ये समेशन, जैसे समेशन FI है, DI है. अब DI क्या है एक्चुअली? DI इज XI माइनस A. सो यू कैन राइट दिस एज XI माइनस A. ठीक है ना? वी आर डिराइविंग फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन थ्रू एज्यूम्ड मीन मेथड. जो हमारा अगला मेथड है उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? डिवाइड बाय समेशन FI. ओके, अगर आप यहाँ पर इसको अलग अलग लिखना चाहोगे तो ये आप हमारे पास ऐसे आ जाएगा, समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI, समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI. अलग अलग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A समेशन FI डिवाइड बाय समेशन FI. मल्टीप्लाई किया और डिवाइड ये जो है अलग लिखा मैंने. तो जैसे हमारे पास जो मिल गया, हमें समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI मींस X बार, यानी कि मीन. समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI हमने सीखा है ना कि मीन किसके बराबर होता है? समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI, दैट वी कैन राइट X बार मीन माइनस यहाँ पर रह गया A. सो वी हैव D बार और DI बार इज समेशन मीन यानी X बार माइनस A. आपको मीन निकालना है, सो X बार विल बी इक्वल टू A इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज A प्लस DI बार. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज टू फाइंड द मीन. अब यहां पर A तो आपको पता है एज्यूम्ड मीन आपने क्या लिया है? 12.5. सो दिस इज 12.5 प्लस DI है ये समेशन FIDI, इट इज समेशन FIDI डिवाइड बाय समेशन FI. So 12.5 प्लस समेशन FIDI ये है 30 डिवाइड बाय समेशन FI क्या है? 30. So 12.5 प्लस 30 डिवाइड बाय 30 इज 1. So you will get 13.5. और ये मीन होगा इस डेटा का. और अगर आप चेक करोगे, हमने जो इससे पहले निकाला था उसमें भी यही निकलेगा 13.5. अभी जो इससे पहले हमने मेथड यूज किया था, डायरेक्ट मेथड, उसमें हमने लास्ट में कैलकुलेशन नहीं की थी कि टोटल डिवाइड करके क्या आ जाएगा. वो आप चेक करोगे, वो भी यही आएगा 13.5. एंड दिस इज कॉल्ड एज एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा. ओके, तो पहले आपने सीखा डायरेक्ट मेथड, ये है एज्यूम्ड मीन मेथड. ओके, आपने देखा कि ये इजी हो गया, बाद में कैलकुलेशन हमारी इजी होगी बिकॉज ऑफ दिस एज्यूम्ड मीन. ये इसीलिए है, if you feel that your calculation is getting tougher, and then you can find through this method. Okay, इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, इंशाल्लाह वो अगले क्लास में सीखेंगे. तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो. अगला क्लास इंशाल्लाह जल्दी होगा, उसमें मैं वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी ऐसे तो फिर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा. इसलिए मैं यहीं पर आपको रोकता हूं. हम अगला क्लास इंशाल्लाह इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी में हमें वो जोड़ना है साथ में, तो हम अगला मेथड भी सीखेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.